So in the last session, we have completed the solutions part of the chapter, which covered types of solutions, the concentration terms, and solubility for few types of solutions, and their dependency on temperature and pressure. Now we move to the second part of the chapter, which is colligative properties. Now, colligative properties are those properties of solution which are only dependent on the number of solute particles. Colligative properties are specifically those properties of solution which are dependent only on the number of solute particles. ठीक है, solution की बहुत सारी properties होती है, लेकिन colligative properties specifically refer to those properties which are dependent on the number of solute particles. So I'll represent the colligative properties with a short abbreviation CP, and as per the definition, they are the properties which are dependent on the number of solute particles. Now ये solute particles के बारे में I'll just discuss in detail. So when I talk about solute particles, they can be classified into two types. It can be a substance which can undergo breakdown. That is, it can either be an electrolyte या फिर कुछ ऐसे substances हो सकते हैं which do not have any tendency to break down, meaning non-electrolytes. ठीक है, solute particles can either be an electrolyte or a non-electrolyte. Non-electrolytes are those which doesn't have any tendency to undergo breakdown. Now, when I say breakdown, I am specifically talking about dissociation, जो substances टूट सकते हैं. ठीक है, example NaCl एक electrolyte है because it can break down into Na plus and Cl minus. But there are many covalent compounds which do not show any tendency to break down. So those are non-electrolytes. And ये वही substances की बात कर रहा हूं जहां पर electrolysis का concept related है. Electrolysis can happen only with electrolytes and not with non-electrolytes, right? ठीक है, अब electrolytes specifically हम dissociation के related बात करते हैं, but there are substances which have the tendency to undergo association also. जैसे substances break होते हैं, वैसे substances combine होकर डाइमर, ट्राइमर या पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस भी कर सकते हैं. दैट प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड एसोसिएशन. सो इलेक्ट्रोलाइट में फर्दर वी कैन हैव द सब्सटेंसेस which can undergo dissociation or the substances which can undergo the combination, that is association. ठीक है, डिसोसिएशन में जनरली हमारे पास एसिड्स हो सकते हैं लाइक HCl, H2SO4, H2CO3, या फिर बेसिस हो सकते हैं लाइक NaOH, KOH, या फिर कॉमनली हमारे पास सॉल्ट्स हो सकते हैं NaCl, MgCl2 एंड सो ऑन. तो ये हो गए अपने कॉमन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अंडरगोइंग डिसोसिएशन. ठीक है, एंड एसोसिएशन में एक एग्जांपल मैं बात करता हूं, उसके बाद और भी एग्जांपल हम आगे देखेंगे. वी हैव एन एग्जांपल ऑफ बेंजोइक एसिड और द कार्बोक्सिलिक एसिड्स डिसॉल्व्ड इन बेंजीन. जब एसिड्स को बेंजीन या कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू अंडरगो एसोसिएशन, एंड इन द एसोसिएशन प्रोसेस दे एक्चुअली फॉर्म अ डाइमर. मतलब two molecules of benzoic acid come together and form a dimer. ठीक है, तो इस सारी चीज के बारे में और डिटेलिंग हम आगे करेंगे. Coming to non-electrolytes, generally non-electrolytes are the covalent compounds which don't show any tendency to break or to associate. इसके सबसे common examples है यूरिया, which is a covalent compound, glucose or the carbohydrates, and a disaccharide like sucrose. यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये तीन बहुत कॉमन एग्जांपल है जो न्यूमेरिकल्स में भी आप देखोगे. ठीक है, सो ऐसी प्रॉपर्टीज which depend on the number of solute particles are called colligative properties.
The word colligative actually is related with a Greek word colligatus, which means collective. Colligative is related to a Greek word which means collective. तो ऐसी collective properties जो solute particles के ऊपर depend करती है, they are called colligative properties. So basically इस पूरे section में we are going to just stress upon this particular concept of solute particles. Now understand solute particles का मतलब. When I talk about non-electrolytes like urea, I said that urea is a covalent compound which will neither undergo disso nor asso. मतलब ना तो वो dissociate होगा ना associate होगा. तो अगर मैं 100 molecules of urea को water में dissolve करूं, how many urea particles I will get? ना तो वो dissociate हो रहा है ना associate हो रहा है. और अगर मैंने 100 यूरिया को पानी में डाला तो कितने particles मिलेंगे पानी में? How many solute particles will be there? 100. 100 only. क्योंकि वो ना तो टूट रहा है ना जुड़ रहा है. बट अगर मैंने HCl को पानी में डाला और उसके 100 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं तो कितने मिलेंगे पार्टिकल्स? 200. 100 H प्लस आयंस, 100 Cl माइनस आयंस, टोटल पार्टिकल्स 200 हो जाएंगे. मतलब डिसोसिएशन में बेसिकली जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स है विच वी आर गोइंग टू इंडिकेट बाय n डैश. So this n dash is going to always increase when the particle is undergoing disso. Association में अगर डाइमराइजेशन हो रहा है और मैं 100 बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डालूं तो एक्चुअली कितने पार्टिकल्स मिलेंगे? If two are combining to form a dimer and I have 100 of them dissolved in benzene, how many actual 50. particles will I observe? Obviously आधा हो जाएगा, 50 हो जाएगा. मतलब एसोसिएशन में n डैश जो है वो घटता है. डू यू अग्री? और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में n डैश रिमेन्स अनचेंज. 100 डाला 100 मिला, कोई चेंज नहीं हुआ. समझ में आया तीन केसेस एवरीवन? Yes. So if the solute particle is undergoing dissociation, will have more particles. If it is undergoing association, will have less particles. And if it is a non-electrolyte, the particles will remain as it is. अब इसी changes की वजह से the particles have a different effect on the properties of solution, and those properties are collectively called colligative properties. हम चार properties की बात करने वाले इस section में. Starting with the first one, it is called relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. This is the first property. ऐसी चार properties है. First property के बारे में बात कर रहे हैं. इसके पहले just have a look at the applications of colligative properties. इनका uses क्या है? Why we are studying them? So the first use is to study the properties of solute particles present in the solution. प्रॉपर्टीज ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स मतलब वो पार्टिकल एसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है या कुछ भी नहीं कर रहा है. तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए ये प्रॉपर्टीज हमें हम यूज करते हैं. टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ द सल्यूट. सल्यूट कौन सा यूज करने पर हमें कितनी प्रॉपर्टीज के ऊपर इफेक्ट होगा, वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. And also to study the extent of asso या disso. कितना extent तक associate हो रहा है या dissociate हो रहा है. Now, if you remember, if I talk about acetic acid, which is a weak acid, its extent of dissociation is identified by which parameter? कितना वो dissociate करता है is identified by which parameter? We have studied this in equilibrium. अगर कोई weak electrolyte है वो कितना एक्सटेंट तक टूटेगा, दैट इज आइडेंटिफाइड बाय व्हाट? हाँ, मतलब if I have 100 acetic acid molecules, only 80 of them are breaking down, 20 are remaining undissociated. What is that parameter called? It's called the degree of dissociation, that is alpha. यानी colligative property से we can determine alpha, we can determine the molar mass of the solutes
we can determine the type of the solute particle, whether it is an electrolyte or a non-electrolyte, और उसका effect colligative property के ऊपर कैसा होता है, ये सारा चीज हम colligative properties के through study करते हैं. That is its application. So now let's start with the first colligative property, that is relative lowering of vapor pressure. इसको तीन parts में हम break down करेंगे. पहले we will understand about vapor pressure. Second, lowering क्या होता है, और third, relative lowering किसको बोलते हैं. ठीक है, तो step by step, first part, vapor pressure. And this property we have already understood before. So consider we have water which is placed in an open vessel, and some amount of heat is being given to the vessel. What will happen? I have taken water in a container and I have heated it. What will happen? Evaporation. Evaporation. The heat will be absorbed by some of the water molecules, and if they are able to overcome the kinetic energy, then they will escape into the atmosphere. That process is simply called as evaporation. अब अगर vessel open है तो these vapors will escape into the atmosphere. But अब इसी vessel को मैं close कर लेता हूँ with the help of a lid. What will happen? Will not escape. It will not escape. Now the molecules are trapped in the container. So over a period of time, the evaporation process will be faster. But एक point ऐसा आएगा जहां पर molecules escape नहीं कर पा रहे हैं. मतलब now those molecules will come in contact with the surface and they will try to condense. मतलब the reverse process, condensation will start. तो इनिशियली इवेपोरेशन ज्यादा होगा, कंडेंसेशन स्लो होगा. जैसे जैसे टाइम जाएगा इवेपोरेशन स्लो डाउन होगा, कंडेंसेशन बढ़ जाएगा. एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर द रेट एट विच द मॉलिक्यूल्स आर इवेपोरेटिंग इज इक्वल टू द रेट एट विच द मॉलिक्यूल्स आर अंडरगोइंग कंडेंसेशन. मतलब 100 मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं तो सेम रेट से 100 मॉलिक्यूल्स आर अंडरगोइंग कंडेंसेशन. सो दिस is called as the point of Equilibrium. what type of equilibrium is this? Physical, chemical or ionic? Physical. Physical. ऐसा equilibrium which is established between the physical states of the same substance is called as physical equilibrium. ठीक है, तो यहाँ पर लिक्विड वाटर और वाटर वेपर्स के बीच में इक्विलिब्रियम आ चुका है, एंड दैट इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम. And this equilibrium is established when the rates of forward process is equal to the rate of the backward process, meaning evaporation is equal to condensation rate. Up under this equilibrium condition, tell me, liquid versus gas, which molecules are having a tendency to exert a pressure? Liquid versus gaseous, which molecules have the Liquid. tendency to exert a pressure? लिक्विड मॉलिक्यूल ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा. लिक्विड एंड गैस में कौन ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है? लिक्विड. ऑब्वियसली नॉट ना. द वेपर्स विल हैव मोर रैपिड एंड रैंडम मोशन, जिसकी वजह से दीज वेपर्स ऑफ द वाटर will now exert a pressure on the surface of the liquid. This pressure exerted by the vapors on the surface of the liquid is called vapor ka pressure. That's what is vapor pressure. And this is the pressure we are talking at the point of equilibrium, where the rate of evaporation is equal to the rate of condensation. It's a very simple definition. The pressure exerted by the vapors of the liquid on the surface of liquid at the point of equilibrium, where the rate of evaporation is equal to rate of condensation. That pressure is called vapor pressure. Understood? Yes or no? Yes, sir.
Now, this particular open vessel or the closed vessel was containing only the solvent. मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर प्योर सॉल्वेंट है, मैंने कोई भी सल्यूट ऐड नहीं किया. तो प्योर सॉल्वेंट में जो वेपर प्रेशर डेवलप होता है दैट इज इंडिकेटेड बाय P1 नॉट. अब ये नोटेशन समझ लो. P इज द वेपर प्रेशर, नॉट मतलब प्योर, and 1 indicates the solvent. So this is the vapor pressure of pure solvent. Vapor pressure P से pure मतलब not, solvent यानी 1. P1 not is the vapor pressure of pure solvent. Understood? अब यहां पर इस प्योर सॉल्वेंट में मैं सल्यूट ऐड कर देता हूं. तो सॉल्वेंट में सल्यूट ऐड करने पर क्या बन जाता है? सॉल्यूशन. तो अब जैसे ही मैं सल्यूट को ऐड करता हूं, हम सल्यूट को दो टाइप्स में कैटेगराइज करेंगे. आइदर द सल्यूट कैन बी वोलेटाइल और इट कैन बी नॉन वोलेटाइल. वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज वोलेटाइल सल्यूट? The substances which have a tendency to Evaporate fast. evaporate are volatile. और नॉन वोलेटाइल मतलब जो इवेपोरेट नहीं होते हैं. ठीक है, तो एसीटोन इज अ वोलेटाइल सब्सटेंस, वी नो दैट. बट अगर मैं NaCl नमक की बात करूं तो दैट्स अ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस. ठीक है, अब सोचो ध्यान से, अगर मैं इस सॉल्वेंट में वोलेटाइल सल्यूट को ऐड करूं तो डज द सल्यूट आल्सो कंट्रीब्यूट टू द प्रेशर, द वेपर प्रेशर? Yes. यस. मतलब ओवरऑल इस केस में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा. बट नॉन वोलेटाइल सल्यूट जब ऐड करूंगा, विल इट हैव एनी कंट्रीब्यूशन? No. नो. ठीक है, तो पहली बात, नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करने पर उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है टू द वेपर प्रेशर. डू यू अग्री? Yes, sir. ठीक है, इनफैक्ट जब मैं सल्यूट को ऐड कर दूंगा तो ये सल्यूट पार्टिकल्स कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट को रिप्लेस कर देगा और सरफेस के ऊपर ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. मतलब नाउ the number of molecules of the solvent which were at the surface will actually decrease. पहले 100 molecules evaporate कर रहे थे, मैंने अब इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सल्यूट डाल दिया तो वो नॉन वोलेटाइल सल्यूट के some of the molecules will occupy the space at the surface, जिसकी वजह से अब मान लो सिर्फ 80 molecules are escaping, मतलब 80 molecules ही evaporate कर रहे हैं. So what will happen to the effective vapor pressure? Decrease. It will decrease. That is the second part, lowering of vapor pressure. कब vapor pressure lower होगा? When we add a Non-volatile solute. perfect. To what type of solvent? पानी कैसा solvent है? Volatile की non volatile? Volatile. Perfect. That's it. Statement मिल गया. When a non volatile solute is added to a volatile solvent, the vapor pressure of the solution is lowered. That is called lowering of vapor pressure. समझा? Yes or no? Yes, sir. ठीक है, तो अब जब सल्यूट को ऐड कर दिया तो जो सल्यूशन का वेपर प्रेशर है, आई एम इंडिकेटिंग बाय PS. S मतलब सल्यूशन. 1 इज द सॉल्वेंट, 2 इज द सल्यूट. सॉल लिखूं या S लिखूं मतलब सल्यूशन. तीन ही नोटेशन है पूरे चैप्टर में. 1 इज फॉर द सॉल्वेंट, 1 मतलब बड़ा मेजर प्रोपोर्शन, 2 मतलब सल्यूट छोटा माइनर प्रोपोर्शन, सॉल या S लिखो मतलब सल्यूशन. So what is PS? Everyone, what is PS? Vapor pressure of. Solution. And what is P1 naught? Vapor pressure of pure solvent.
And when we added a non-volatile solute to the volatile solvent, what happened to the PS in comparison to P1 naught? Decrease. Decrease. So is this relation understood? Yes, sir. So if I take the difference of this, it will be indicated as P1 naught minus PS. This delta P is called lowering of vapor pressure. And relative का मतलब you divide it with respect to the original vapor pressure. Original मतलब P1 naught. PS किसके रिस्पेक्ट से घटा? P1 naught के रिस्पेक्ट से. तो with respect to P1 naught अगर आप रेशियो लेते हो तो इसी रेशियो को बोलते हैं relative lowering of vapor pressure, and that's what is delta P by P1 naught equal to. Understood? Yes, sir. परफेक्ट. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है उसको अब हम आगे धीरे धीरे जस्टिफाई करेंगे. जस्ट अंडरस्टैंड द फ्लो. आई हैव एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर, व्हाई द लोअरिंग एंड व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग. तीनों पार्ट्स मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है. अब ध्यान दो. फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन. सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से चेंज हो सकता है या अफेक्ट हो सकता है? फर्स्ट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं. वन विच हैव वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, and other which have stronger intermolecular forces. अब मुझे बताओ, अगर कोई सॉल्वेंट है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? Higher. हायर होगा, क्योंकि वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है तो आसानी से एस्केप कर सकते हैं. तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहां पर इवेपोरेट होंगे और ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहां पर कंट्रीब्यूट करेंगे टू द वेपर प्रेशर. मतलब यहां पर बेसिकली द वेपर प्रेशर विल बी हायर. डू यू अग्री? एंड सिमिलरली जो सब्सटेंसेस में स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा. ठीक है. नेक्स्ट, नेचर ऑफ द सल्यूट. अब सल्यूट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इट कैन आइदर बी वोलेटाइल या Non-volatile. नॉन वोलेटाइल. अगर वोलेटाइल होगा तो वो भी कंट्रीब्यूट करेगा, तो इफेक्टिव वेपर प्रेशर यहां पर हायर होगा. ऑब्वियसली मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूं, वेपर प्रेशर मतलब सोल्यूशन का. और नॉन वोलेटाइल में वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है. वही तो प्रॉपर्टी को हम समझ रहे हैं. मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज रिलेटेड टू व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूट? Non-volatile. नॉन वोलेटाइल. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. अगर सोल्यूशन कम कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब ज्यादा डाइल्यूटेड है तो क्या इफेक्ट होगा वेपर प्रेशर पे? It'll be higher. इट विल बी हायर. एंड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब कम डाइल्यूटेड है तो इट विल बी लोअर. तो यहां पर वेपर प्रेशर हायर होगा, यहां पे वेपर प्रेशर लोअर होगा. एंड टेम्परेचर, if I increase the temperature, if I heat up the solution, what will happen to the vapor pressure? Increase. Obviously, क्योंकि ज्यादा वेपर्स बनेंगे, ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा in the pressure, and that is why the vapor pressure will increase with the increase in temperature. समझा? तो वेपर प्रेशर जो है that is fixed at a fixed temperature. As the temperature changes, vapor pressure will also change. और ऐसा फंडा क्यों आया? क्योंकि वेपर प्रेशर एक इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी है. वेपर प्रेशर इज एन इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी, एंड कोई भी इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है. मतलब उसकी वैल्यू फिक्स होगी जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करे, और टेम्परेचर चेंज हुआ तो वेपर प्रेशर या कोई भी इक्विलिब्रियम का प्रॉपर्टी हो, इट्स वैल्यू विल चेंज. केसी, केपी याद है ना, केएसपी, ये सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं which are dependent on temperature. Getting it? Yes, sir. Yes, sir. So this is the diagram for lowering of vapor pressure.
प्योर सॉल्वेंट का पी नॉट या फिर P1 नॉट से रिप्रेजेंट किया था। अब जब मैंने नॉन वोलेटाइल सल्यूट को ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल, याद रहे नॉन वोलेटाइल, तो कुछ सल्यूट के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर सरफेस के ऊपर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को किक आउट कर देंगे। इसकी वजह से नाउ द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एस्केपिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द वेपर प्रेशर विल डिक्रीज, and that is why the vapor pressure of solution will be lowered. That's why we have justified that PS will be less than P1 naught, and that's why the delta P was equal to P1 naught minus PS, and with respect to P1 naught this property is called relative lowering of vapor pressure. Clear है? बोलो हेलो। Yes, sir. Now coming to example of lowering of vapor pressure of a liquid. आप एक डायग्राम देख सकते हो जहां पर एक क्लोज्ड कंटेनर में 3 बीकर्स है। फर्स्ट बीकर कंटेन्स प्योर वाटर, सेकेंड कंटेनर में 1 मोलर क्यूप्रिक सल्फेट डाला हुआ है जो ब्लू कलर्ड है, और थर्ड कंटेनर में इक्वल वॉल्यूम में 2 मोलर CuSO4 अवेलेबल है। ठीक है, तो ये इसका इनिशियल स्टेट है। अब मुझे बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा इवेपोरेशन किसका होगा? The first one. The first one, because it is pure solvent. क्योंकि जैसे ही मैं CuSO4 को डाल दूंगा उसका वेपर प्रेशर लोअर होगा। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा इवेपोरेशन पानी का होगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट विल बी द कंटेंट्स ऑफ द 3 कंटेनर्स? पहला कंटेनर, दूसरा कंटेनर और तीसरा कंटेनर, क्या सिचुएशन होगा आफ्टर सम First container time? would be empty. Second container would have a bit of solvent there. तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हुए हैं दे विल कंडेंस एंड दे विल एक्चुअली सेटल डाउन इन द कंटेनर 2 and 3. डू यू अग्री? एंड अब Yes. जब फाइनली इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो 2 और 3 का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कंपैरेटिवली ज्यादा किसका वॉल्यूम बड़ा होगा? 3. 3। अच्छा, 1 वर्सेस सॉरी कंटेनर नंबर 2 वर्सेस 3 में which will have more evaporation possible? More evaporation would be in 2. Will be in 2 because उसमें 1 molar CuSO4 है, बराबर। तो this is the final state. Container 1 will be completely empty, 2 जो है वो एक्चुअली उतना ही रहेगा, और थर्ड जो है उसका वॉल्यूम बढ़ चुका होगा। तो बेसिकली जो भी इवेपोरेशन फर्स्ट कंटेनर में से हुआ they will actually condense into the third container, and finally this is the situation. समझा वेपर प्रेशर लोअरिंग? So why will the first one's volume go into the third one after evaporation? Because यहाँ पर 1 molar CuSO4 versus 2 molar CuSO4 में this is less concentrated and this is more concentrated, right? Yes, sir. तो evaporation ज्यादा किस में होगा? The second one. सेकेंड वन। थर्ड में evaporation बहुत कम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा ना तो यहाँ सारा कंटेंट्स निकल जाएगा क्योंकि इसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, और ये सारे वेपर्स कंडेंस होकर थर्ड में सेटल डाउन हो जाएंगे बिकॉज इसका वेपर प्रेशर मिनिमम है, और 2 का जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में उतने का उतना ही रहेगा। तो बेसिकली द सब्सटेंस हैविंग द हाईएस्ट वेपर प्रेशर will actually condense into the substance having the minimum vapor pressure. That is what is understood from the diagram. समझा? Yes, sir. So now ये relative lowering of vapor pressure एक colligative property क्यों है? That is understood by a law given by Raoult. Raoult's law. Raoult's law बहुत सिंपल है, समझो यहाँ पर। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है which is having the solvent and some solute added to it. कोई भी टाइप का सल्यूट हो यहाँ पर, अभी फिलहाल मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है,
तो अब यहाँ पर अगर ये कंटेनर में मुझे टोटल वेपर प्रेशर की बात करनी है, टोटल, तो इट विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय both the components, मतलब the vapor pressure contributed by solvent plus the vapor pressure contributed by the solute. ठीक है, ऑब्वियसली सल्यूट वोलेटाइल होना चाहिए तो ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो फिलहाल के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सल्यूट वोलेटाइल है, तो उस केस में द सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। वन माने, वन किसको इंडिकेट करता है, solvent, और टू solute. सल्यूट। अब ये जो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स है P1 और P2, वो राउल्ट्स लॉ ने बताया कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन will always be dependent on its mole fraction. The partial vapor pressure of any component in the solution will be dependent on its mole fraction. देखो फंडा सिंपल है, मान लो आपका सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स है, 1/4 of the component is the solute and 3/4 is the solvent. तो जिसका परसेंटेज अमाउंट ज्यादा है, will that contribute more या less to the vapor pressure, total vapor pressure? It will contribute more. मतलब 75% वेपर प्रेशर सोल्यूशन का सॉल्वेंट की वजह से होगा और 25% सल्यूट की वजह से होगा। डू यू अग्री? Yes, sir. तो राउल्ट ने वही बोला कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का, वो उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, सो P1 विल बी प्रोपोर्शनल टू X1 एंड P2 विल बी प्रोपोर्शनल टू X2। अब ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाए तो वी गेट अ कांस्टेंट विच इज P1 नॉट, एंड यहां पर वी विल गेट अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज P2 नॉट। नॉट माने क्या? हाउ डू यू रीड P1 नॉट? हाँ, Vapor pressure of pure solvent. प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट मतलब जब तक उसमें सल्यूट ऐड नहीं किया था, तो वो जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, दैट इज P1 नॉट। बराबर। तो मान लो इनिशियली प्योर पानी का वेपर प्रेशर 100 ATM था, हाइपोथेटिकल वैल्यू है। अब मैंने इसमें कोई सल्यूट ऐड किया, ठीक है, तो सल्यूट ऐड करने की वजह से ये वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो जो चेंज हुआ वेपर प्रेशर, दैट विल बी द P1। मतलब इन द एब्सेंस ऑफ द सल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज P1 नॉट। सल्यूट ऐड करने के बाद उसका वेपर प्रेशर पार्शियल हो जाएगा, क्योंकि एक और कंपोनेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। गेटिंग इट? हेलो हेलो। Yes, sir. So now the total vapor pressure of the solution will be equal to P1 naught into X1 plus P2 naught into X2, and we know that mole fraction का sum is always equal to 1. तो यहाँ पर I can write X1 as 1 minus X2 plus P2 naught into X2. So this will become P1 naught minus P1 naught X2 plus P2 naught into X2. Therefore, the PS will be equal to P1 naught plus X2 कॉमन ले लेता हूं, P2 naught minus P1 naught. ये जस्ट एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने डिराइव किया है by using the concept of partial pressure and then the Raoult's law. समझा? Yes, sir. Yes. ठीक है। Now tell me, when we talk about lowering of vapor pressure, the solute is what type? Is it volatile या non-volatile? Non-volatile. Non-volatile. अगर solute non-volatile है तो what will be its pure vapor pressure? P2 naught क्या होगा? 0. Obviously नॉन वोलेटाइल है, मतलब वो तो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा है ना, वो इवेपोरेट ही नहीं हो रहा है, तो उसका वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, मतलब P2 नॉट इक्वल टू 0। इज दिस कंडीशन क्लियर?
तो पीछे अगर मैं P2 नॉट को निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2, हाँ कि नहीं? Yes or no? Yes. So therefore the PS Yes, will sir. be equal to P1 naught minus x2 into P1 naught. मतलब ये हो जाएगा आपका P1 naught into 1 minus x2. And what is 1 minus x2? It's x1. X1. अब बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, अपना टोटल वेपर प्रेशर P1 और P2 के ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन अगर हम सल्यूट को नॉन वोलेटाइल ले लेते हैं तो P2 पूरा का पूरा क्या हो जाता है, 0। और P2 अगर 0 हो जाएगा तो PS P1 के बराबर ही होगा ना, तो ये P1 नॉट इंटू x1 P1 ही तो है, समझा? मतलब फॉर अ नॉन वोलेटाइल सल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज सिंपली इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ Solvent. सॉल्वेंट, बिकॉज खाली सॉल्वेंट ही तो कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, नाउ यहाँ पर दूसरी बात, हम लोअरिंग की बात करते हैं। तो लोअरिंग जो था अपना P1 नॉट माइनस PS था, और रिलेटिव का मतलब डिवाइड बाय P1 नॉट। ये फॉर्मूला क्लियर है सबको? अब हमने ऊपर से PS को डिराइव किया एस P1 नॉट Yes. इंटू x1 और डिवाइड बाय P1 नॉट। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। P1 नॉट इंटू 1 माइनस x1 अपॉन P1 नॉट, P1 नॉट छू, और 1 minus x1 is x2. Therefore, the relative lowering of vapor pressure, which is delta P by P1 naught, is equal to what? x2. x2 is what? The mole fraction of किसका है? Solute. सल्यूट। मतलब जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो डिपेंड कर रहा है ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। मतलब इट इज अ प्रॉपर्टी विच इज डिपेंडेंट ऑन द सल्यूट का पार्टिकल्स, hence it's a colligative property, and hence I have just proved mathematically that the relative lowering of vapor pressure is nothing but a colligative property. Is the flow clear? Yes. sir. पूरा कोरिलेटेड है। पहले मैंने वेपर प्रेशर समझाया, फिर लोअरिंग होने के लिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का एडिशन किया, फिर रिलेटिव इज जस्ट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू प्रूव दैट इट्स अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड फाइनली डेल्टा P बाई P1 नॉट को राउल्ट्स लॉ के थ्रू मैंने प्रूव कर दिया एज इक्वल टू x2। क्लियर यहां तक एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दूसरी बात x2 जो है दैट इज द मोल्स का रेशियो, सो इट्स n2 अपॉन n1 प्लस n2, है ना? अरे हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं एक कंडीशन ले रहा हूं, इफ द सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, मतलब क्या हुआ? इफ द सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट मतलब किसका प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है? Solvent. यानी सोल्यूट का प्रोपोर्शन इज वेरी, Less. मतलब कैन आई से n2 इज वेरी वेरी छोटा एज कंपेयर टू n1? इसका मतलब n1 प्लस n2 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू N1. 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 Therefore, delta P by P1 naught for a very dilute solution is equal to n2 upon n1. चलेगा? और n2 क्या होता है इंटर्न? इट्स गिवन मास अपॉन मोलर मास W2 by m2, और n1 क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास W1 by m1। ठीक है, तो इसके थ्रू अगर मुझे मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट फाइंड करना है, जो कि एप्लीकेशन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, आई विल गेट अ फॉर्मूला W2 by W1 into
m1 into p1 नॉट अपॉन डेल्टा p। मैंने खाली रीअरेंज किया है। इनफैक्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना भी नहीं है, आप सिंपली डेल्टा p बाई p1 नॉट इक्वल टू x2 याद रखो। बाद में अगर वो डाइल्यूट होगा तो आप ये सारी चीज करके यहाँ तक पहुंच सकते हो। नो नीड टू मग इट अप, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला जो स्टार मार्क किया है मैंने। और दूसरा ये चीज कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज सिंपली इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एंड थ्रू दैट डेल्टा p बाई p1 नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, एंड उसके थ्रू हम मोलर मास को फाइंड कर सकते हैं। यही जनरली न्यूमेरिकल्स में आता है, ठीक है। लेकिन ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ये याद रखो, अपने आप आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। गॉट इट? यस और नो? Yes, sir. Perfect. Now let's understand the variation of vapor pressure with mole fraction of a solvent in solution. So as per Raoult's law, the partial vapor pressure of any component was directly proportional to its mole fraction. So if I plot the vapor pressure on the y-axis and the mole fraction of that component on the x-axis, I will get a graph of the type y equal to mx, Straight which is the graph of a straight line passing through the origin with a slope equal to p1 naught, क्योंकि ये proportionality हटाने पर p1 naught ही मिल रहा था ना, समझा कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, so this is vapor pressure of solvent यानी p1 plotted versus the mole fraction of the solvent यानी x1. So as per that, this particular graph will have a straight line passing through the origin and the slope will be equal to p naught या p1 naught. p1 naught या p naught एक ही है। और जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो लेट्स से दिस इज द value which has got decreased, and this decrease will indicate the lowering of vapor pressure, which is delta p, and that will happen with some amount of the solvent in the solution that will correspond to this particular point of the mole fraction. So this is the graphical understanding of the lowering of vapor pressure. Got it? So Yes, sir. I have a doubt on the previous slide. Hmm. So this formula will be used if it's dilute, but if it's Yes. concentrated, then the N2 will come in the denominator also. Yes, this will be the formula to be used. Right? आपको इग्नोर नहीं करना है ना। अगर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है तो डोंट इग्नोर, यू जस्ट टेक n2 n1 plus n2 entire part in the right hand side. This is true Okay. only if the solution is very dilute. अगर ऐसा कोई मेंशन है तो ठीक है, फाइन। Yes, sir. अब मैं एक सिंपल फॉर्मूला को जस्ट मैं थोड़ा सा change करूंगा and I'll just give you a simplified version. What we have for any type of solution is delta p by p1 naught equal to n2 upon n1 plus n2. This is for any solution, है ना, चाहे concentrated हो dilute हो, सबके लिए यूज करते हैं, right? ऋषा, हेलो। Yes, sir. अब आई एम जस्ट इन्वर्टिंग दिस फॉर्मूला, मतलब मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास आएगा p1 नॉट अपॉन डेल्टा p की जगह p1 नॉट माइनस ps, और राइट हैंड साइड को भी उल्टा करता हूं n1 प्लस n2 अपॉन n2, विच कैन बी रिटन एज n1 अपॉन n2 प्लस 1। अब ये 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाता हूं तो मुझे मिलेगा p1 नॉट अपॉन p1 नॉट माइनस ps and minus 1 equal to n1 by n2। अब मैं डिनोमिनेटर को अगर ऊपर लेकर जाओ तो p1 नॉट कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा ps, तो यहां पर मिलेगा ps अपॉन डेल्टा p इक्वल टू n1 अपॉन n2। समझा ये डेरिवेशन? Yes, sir. अब देखो पीछे जो फॉर्मूला था
that was delta P by P1 naught equal to what? ध्यान से देखो, N2 by N1, and this formula we will use for dilute solutions. बट अगर सोल्यूशन हमें पता नहीं है कि डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हम कोई अजम्पशन नहीं कर सकते हैं, उस केस में हमें यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. अब इसकी जगह आई कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो. अब ये ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन है क्योंकि इसमें N2 अपॉन N1 प्लस N2 को हमें रिलेट नहीं करना है. वी हैव टू जस्ट टेक N1 बाई N2 का रेशियो. तो लुक एट दिस फॉर्मूला, इट्स PS अपॉन डेल्टा P इक्वल टू N1 बाई N2. दोनों फॉर्मूला को सामने सामने रखता हूं तो आपको और क्लियर होगा. पहला फॉर्मूला डेल्टा P बाई P1 नॉट इक्वल टू N2 बाई N1 था. दिस इज द conditional formula. The condition is this is applicable for everyone. Dilute solution. Dilute solution. तो अब PS upon delta P equals to ulta N1 upon N2 can be used for any type of solution. For any type of solution. समझा? Yes, sir. बस. तो ये दो फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस आते हैं. Now one more part. The composition of vapor phase in equilibrium with the solution is determined by partial pressure of the components. Now this concept is related to a thing which we have already discussed, Dalton's law of partial pressure. Do you remember Dalton's law? अगर एक कंटेनर में मेरे पास मल्टीपल गैसियस कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ पर मैं दो गैसेस की बात कर रहा हूं. एक गैस 1, ये 1 है, और छोटा वाला गैस 2 है. तो व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर ऑफ दिस कंटेनर? P1 plus P2. एंड P1 जो पार्शियल प्रेशर है एज पर डाल्टन्स लॉ वाज इक्वल टू व्हाट? डाल्टन्स लॉ के हिसाब से P1 किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? P total into its mole fraction ना? अरे हाँ कि नहीं? मतलब टोटल प्रेशर का मोल फ्रैक्शन से अगर मल्टीप्लाई करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 है ना? अरे डाल्टन्स लॉ पढ़ा है ना हमने, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. P1 is P total into the mole fraction, P2 is P total into its mole fraction. तो वही चीज यहां पर आप देख सकते हो, P1 equal to Y1 into P total and P2 will be Y2 into the P total. अब ये जो Y है ना, this is called mole fraction of the components in the vapor phase. Mole fraction in the vapor phase. अब इसका फर्क क्या है? अगर मैं लिक्विड लिक्विड टाइप का सोल्यूशन ले रहा हूं, गैस की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान देना, लिक्विड. तो लिक्विड में क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करते हैं और वो वेपर वाले मॉलिक्यूल्स कंट्रीब्यूट करेंगे टू द वेपर प्रेशर, राइट? तो लिक्विड के अंदर उस मॉलिक्यूल का जो प्रपोर्शन है ना, दैट इज इंडिकेटेड बाय मोल फ्रैक्शन x. बट वही मॉलिक्यूल जब वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वेपर में उसका प्रपोर्शन कितना है उसको हम इंडिकेट करते हैं विथ अ लेटर y. इज x एंड y का डिफरेंस क्लियर? Yes, sir. X is that proportion of the component which is present in the अरे गधो, X is the proportion of those molecules, मतलब it is the mole fraction which is in the liquid phase. मतलब जब तक वो लिक्विड के अंदर है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द वेपर प्रेशर, दैट विल बी X. और जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाता है तो वेपर्स में कितना प्रपोर्शन है, दैट विल बी कॉल्ड एज अगेन मोल फ्रैक्शन ओनली, बट दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द
in the वेपर फेज। तो यहां पर दो टाइप के मोल फ्रैक्शंस लिक्विड्स के केस में, गैस में कोई प्रॉब्लम नहीं था बिकॉज एक ही होमोजेनस फेज वहां पर अवेलेबल है। बट लिक्विड में जब वेपर प्रेशर का फंडा हम सोचते हैं तो उसमें दो फेजेस आ रहे हैं, एक लिक्विड और दूसरा वेपर्स। तो लिक्विड के अंदर जो उसका फ्रैक्शन है वो x है और वेपर्स के अंदर जो फ्रैक्शन है वो y है। समझा x और y का फर्क? Yes, sir. ठीक है, तो क्वेश्चन में x पूछा है कि y पूछा है वो बहुत ध्यान से आपको सोचना है। अगर x पूछा तो आप राउल्ट्स लॉ लगाओगे, कौन सा लॉ? Raoult's law. और y पूछा है तो Dalton's law. डाल्टन्स लॉ। वापस इसका फर्क बता देता हूं। राउल्ट्स लॉ के हिसाब से P1 was equal to P1 नॉट into x1, तो x1 ढूंढने के लिए आप P1 अपॉन P1 नॉट करोगे, राइट? एंड अगर वही y पूछा है तो आप यूज करोगे P1 इक्वल टू P टोटल इंटू y1। समझा फर्क? Yes, sir. तो बेसिकली फर्क कहां पर है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में। राउल्ट का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, और डाल्टन में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट टोटल वेपर प्रेशर होता है। दैट्स इट। समझा? Yes, sir. ये सब चाहिए तो आप नोट्स में ऐड करते जाओ, जहां जहां मैंने कुछ बताया है आप नोट कर लो। आई विल सेंड यू द पीपीटी, यू कैन नोट डाउन। Now coming to a very interesting concept of ideal and non-ideal solutions. This is very analogous to ideal and non-ideal gases. Ideal gases are those which obeys all the gas laws under all conditions of temperature and pressure. ये ideal gas होता है। Hello everyone. Ideal gases are those gases which obeys the gas laws under all conditions of temperature and pressure. So ideal solution are those solutions which obeys Raoult's law under all conditions of temperature and concentration. Pressure नहीं, solution है ना, liquid की बात कर रहे हैं। तो ideal solutions are those solutions which obeys Raoult's law under all conditions of concentration and temperature, at all temperature and concentration. Simple definition. And non-ideal solutions are those which do not obey the Raoult's law under all conditions of temperature and concentration. जैसे ideal and non-ideal gases था, जहां पे gas loss की बात कर रहे थे, वैसे ही ideal and non-ideal solutions हैं, हम Raoult's law की बात कर रहे हैं। वहां पे टेम्परेचर प्रेशर की बात करते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। बराबर? Yes. तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन में ओबेइंग राउल्ट्स लॉ का मतलब क्या? मान लो दो कंपोनेंट्स है ए एंड बी, और वो ऐड करके मैं बना रहा हूं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में ए और बी दोनों साथ में रहेंगे, राइट? अज्यूम कर लेते हैं ए आपका सॉल्वेंट है और बी सल्यूट है, मतलब दो कंपोनेंट्स हैं, राइट? अब राउल्ट्स लॉ ओबे करने के लिए द कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन the molecules of B, and when they are together, that is between A B, should be equal. यानी A के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी वेंडर वॉल्स होता है मान लो, तो वही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बीबी में भी होना चाहिए, वही मिलने के बाद ए और बी के बीच में भी होना चाहिए। मतलब जब सिमिलर टाइप ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है बिटवीन द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एंड द मिक्स्ड कंपोनेंट्स, दैट सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज एन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है एंड उसके लिए द मॉलिक्यूल शुड बिलोंग टू द सेम फैमिली।
ध्यान रखना, ये एक वर्ड याद रखो, आपको सारे एग्जाम्पल्स ख्याल आएंगे. The example of the molecules should be from the same family, है ना. सेम फैमिली में बहुत सारे जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं. वैसे ही अगर मॉलिक्यूल सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग भी मोर और लेस सेम ही रहेगा. मतलब अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, कैन आई से दे बिलोंग टू द अल्केन फैमिली? मतलब एन हेक्सेन के बीच में, ए के बीच में वेंडर वॉल्स होगा, तो हेप्टेन में भी वेंडर वॉल्स है, और हेक्सेन हेप्टेन के बीच में भी वेंडर वॉल्स होगा. मतलब देयर विल बी सिमिलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड आफ्टर मिक्सिंग. ठीक है. और एग्जांपल्स आप सोच सकते हो, इट कैन बी बिलोंगिंग टू द हैलाइड फैमिली, यानी ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोब्यूटेन एंड क्लोरोब्यूटेन, इथेनॉल and methanol and so on. समझा? How to identify the example? Yes, sir. Benzene and toluene belonging to the aromatic family. बस खाली याद रखो, आइडियल सॉल्यूशंस में सेम फैमिली वाले एग्जांपल्स या कंपाउंड्स होने चाहिए, तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, हाँ कि नहीं? Yes. तो और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है. अगर वो आइडियल सोल्यूशन और राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है, मतलब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन विल बी इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB. ये सेटिस्फाई करेगा. ठीक है. दूसरा, अगर मैं 1 लीटर एन हेक्सेन और 1 लीटर एन हेप्टेन ऐड करूं तो टोटल वॉल्यूम, अगर वो आइडियल है तो 2 लीटर्स होगा. जनरली वॉल्यूम्स आर नॉट एडिटिव, बट आइडियल सॉल्यूशंस में जब सिमिलर टाइप के फोर्सेस होंगे तब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता. मतलब डेल्टा V आफ्टर मिक्सिंग will have no change, it will be equal to 0. Thirdly, during the mixing there will be no change in the enthalpy also. मतलब ना तो कोई हीट रिलीज होगा ना कोई हीट एब्जॉर्ब होगा. The delta H of the mixing will also be equal to 0. मतलब आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. PS will be equal to PA naught XA plus PB naught XB. Delta V mixing and delta H of the mixing will be equal to 0. There will be no change in the volume. There will be no change in the enthalpy. मतलब ना तो कोई हीट एब्जॉर्ब होगा ना ही कुछ हीट इवॉल्व होगा. For ideal solutions. Clear? Yes or no? Yes, sir. तो अब आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा दिखेगा? सो इफ आई प्लॉट द ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर P वर्सेस द मोल फ्रैक्शन, दो कंपोनेंट्स मैंने लिया है, तो इस पॉइंट पे अगर मोल फ्रैक्शन A का 1 है तो मोल फ्रैक्शन B 0 होगा. यस और नो? क्योंकि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन तो हमेशा इज इक्वल टू 1. अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा XA डिक्रीज होते जाएगा एंड XB इंक्रीज होते जाएगा. इस पॉइंट पे XA अगर 0 हो जाता है तो XB विल चेंज टू 1. Now we know that the vapor pressure and the mole fraction are as per Raoult's law directly proportional. मतलब यहां पर आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए. ठीक है. और आपका जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू PB नॉट, और वो PB नॉट की वैल्यू आपको इस पॉइंट पे मिलेगी जब आपका XA 0 हो जाएगा. कैसे होगा ये? जब मैंने बोला PS इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB. तो जब आप XA को 0 रख दोगे तो ये पूरा उड़ जाएगा एंड PS विल बी इक्वल टू PB नॉट इंटू XB, और XB आपका 1 हो जाएगा. तो ये पॉइंट पे सीधा PS PB नॉट के बराबर होगा, राइट?
ठीक है, तो ये बी के लिए हुआ। सिमिलरली अगर राइट हैंड साइड से मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं, ठीक है, पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, देन इट विल बी करस्पॉन्डिंग टू द ए का पार्शियल प्रेशर विच इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और ये पॉइंट पे वेपर प्रेशर पी ए नॉट के बराबर हो जाएगा। वापस इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एक्स बी 0 हो जाएगा और एक्स ए 1 हो जाएगा, तो पी एस पी ए नॉट के बराबर होगा कि नहीं होगा। और इन दोनों पॉइंट्स को मैं अगर ज्वाइन कर दूं तो आई विल गेट द टोटल वेपर प्रेशर पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। समझा ये तीनों लाइंस? एक बार फिर से, लाइन नंबर 1, इसको मैं लाइन नंबर 1 बोल रहा हूं, इट इंडिकेट्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ component A, sorry, of component B. Second line indicates the partial vapor pressure of component A. And the third dark line indicates the total vapor pressure. मतलब, when the lines are linear, it indicates the graph for an ideal solution, right? अरे when the graph is linear, इसको straight line को linear बोलते हैं ना मैथमेटिक्स में. So when the graph is linear, it indicates an ideal solution. But जैसे ही हम नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे, ये तीन प्रॉपर्टीज अनइक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे नॉट लग जाएगा। ठीक है, अब उसको समझने के लिए दो केसेस हम कंसिडर करेंगे। पहला केस जो ए बी बी और ए बी इंटरेक्शन में फर्क इंडिकेट करेंगे हम। So if I mix two components A and B such that the AB यानी the force of attraction between A and B is lesser as compared to the individual forces of attraction, then it is said to show a negative deviation from the Raoult's law. Deviation कैसा है? Negative. अब ये वर्ड नेगेटिव का मतलब भी आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। मुझे बताओ, अगर ए और बी के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। एक मिनट, सॉरी, पहले मैं दो केसेस आपको बताता हूं फिर इसको नाम देंगे। तो इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली केस 2, ए का इंटरेक्शन बीबी का इंटरेक्शन और ए बी का इंटरेक्शन इज सच दैट the AB का interaction becomes stronger than the individual interactions. तो इस केस में अब stronger interactions की वजह से the molecules will be having less tendency to evaporate. उस केस में जो final vapor pressure होगा solution का, that will decrease. मतलब ये जो deviation है ना, that is with respect to the vapor pressure. अगर vapor pressure decrease होता है तो डिविएशन नेगेटिव बोलेंगे, अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है तो डिविएशन पॉजिटिव बोलेंगे। मुझे बताओ, केस नंबर 1 में जब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस वीकर है तो वेपर प्रेशर इज इंक्रीजिंग। मतलब हियर दिस सॉल्यूशंस आर नॉन आइडियल, शोइंग अ पॉजिटिव डिविएशन। एवरीवन, शोइंग अ पॉजिटिव डिविएशन। एंड अगर ए बी का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, तो इट विल बी द केस ऑफ अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग अ नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। करेक्ट? Yes, sir. एंड अब इनके ग्राफ्स कैसे आएंगे? हैव अ लुक एट दिस। अगर कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब आइडियल के कंपैरिजन में द वेपर प्रेशर हैज Increase. मतलब दिस विल शो Positive deviation. सुपर फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। क्या बोलने का?
पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम The Raoult's law. द राउट्स लॉ. एंड अब अगर कर्व नीचे आ रहा है, लुक एट द पर्पल लाइन, this will indicate negative deviation from the Raoult's law. समझा ये बात? Yes. तो अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज मैं इसकी रिलेट कर रहा हूं, यहाँ पर ध्यान देना. पॉइंट नंबर 1, कैन आई से दैट PS will be now equal to PA naught XA plus PB naught XB? Will this be true now? No. No, it will be not equal. अच्छा, नॉट इक्वल में अगर कंपैरिजन करना है तो फाइनल वेपर प्रेशर क्या हो रहा है इस केस में? डिविएशन को पॉजिटिव क्यों बोला? द फाइनल वेपर प्रेशर इज Higher. हायर. सो कैन आई से फॉर पॉजिटिव डिविएशन PS विल बी Greater. ग्रेटर देन PA plus PB या PA naught XA plus PB naught XB. Do you agree with this? Yes, sir. सेकेंडली, ध्यान से सुनना, इस केस में कंडीशन क्या आया हमारा? AA एंड BB का इंटरेक्शन एज कंपेयर्ड विथ AB इज Lesser. क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ने का रीजन क्या है कि मॉलिक्यूल्स आर इजी टू एवेपोरेट. इजी टू एवेपोरेट कब होगा? जब AB का इंटरेक्शन कम होगा. डू यू अग्री? हाँ कि नहीं? Yes, sir. तो अब मुझे बताओ, अगर मैं कंपोनेंट A का 1 लीटर और कंपोनेंट B का 1 लीटर ऐड करूंगा, विल द वॉल्यूम बी 2 लीटर्स, मोर देन 2 लीटर्स या लेस देन 2 लीटर? थिंक एंड आंसर. इट्स बेस्ड ऑन पॉइंट नंबर 2. More than. मोर देन, क्योंकि अब A और B के बीच में लूज इंटरेक्शंस है, मतलब A एंड B के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होंगे, मतलब दे विल टेंड टू ऑक्यूपाई ग्रेटर वॉल्यूम. मतलब 1 लीटर प्लस 1 लीटर नाउ विल बी एक्चुअली गिविंग यू अ फाइनल वॉल्यूम मोर देन 2 लीटर. यानी जो डेल्टा V है दैट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव. ठीक है. और डेल्टा H, what can you comment on the enthalpy? Will the heat be absorbed, released or no change? एक हिंट आपको देता हूं, जब भी मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं दे फॉर्म सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन. इन दैट केस द हीट इज रिलीज्ड. व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर coming closer, they are forming some kind of interaction, the heat is released in that. इस केस में रिलीज होगा, एब्जॉर्ब होगा या कोई चेंज नहीं होगा? Are A and B molecules coming closer or they are going apart? Apart. They are going apart. मतलब A और B के बीच में एज सच कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग बन नहीं रहा है, मतलब हीट रिलीज नहीं हो रहा है, हीट इज एक्चुअली गेटिंग एब्जॉर्ब्ड. मतलब इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके अपने आप को दूर कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई द हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड. तभी तो A और B दूर रहेंगे ना. So now have a look at the 4 points. Positive deviation मतलब PS is greater than the individual pressures का sum. A and BB is also greater than AB. Delta V is greater, delta H is greater than 0. खत्म. सब कुछ कोरिलेटेड है. आया कि नहीं समझ में? Yes. Yes, sir. तो अब 4 पॉइंट्स मुझे नेगेटिव डिविएशन का बता दो. चलो एवरीवन. Solution showing negative deviation. Point number 1. PS will be, everyone, Smaller than PA. smaller than PA naught XA plus PB naught XB. इसको P1 naught X1, P2 naught X2 भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. सेकेंड बोलो.
BMX is not. A and BB का इंटरेक्शन विल बी वीकर एज कंपेयर टू AB, यानी अब AB का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाएगा. थर्ड, द डेल्टा V ऑफ द मिक्सिंग, क्योंकि A और B बहुत क्लोज आ चुके हैं इसलिए अब नेट वॉल्यूम कम हो जाएगा एंड हीट विल बी रिलीज इन दिस केस, मतलब इट विल बी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. आर यू क्लियर विद ऑल दिस पॉइंट्स? नेगेटिव Yes, मतलब sir. सब कुछ लेस होगा. तो अब सिंपल चीज है, अगर आइडियल है तो इक्वल आएगा, पॉजिटिव है तो ग्रेटर आएगा, नेगेटिव होगा तो लेसर आएगा. दिमाग भी यूज नहीं करना है. इट्स फंडू एंड इट्स सिंपल, राइट? Yes, sir. अब इसी से रिलेट करते हुए आगे की कहानी, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच में वीकर है तो दिस सॉल्यूशन हैज अ हाई वेपर प्रेशर, एंड इफ इट इज हैविंग अ हाई वेपर प्रेशर, the boiling point of such solution will be greater or lower, Lower. क्योंकि वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से Inversely proportional. करेक्ट. मतलब यहां पर the solution showing a positive deviation will have the overall boiling point, या solution का boiling point becoming lower. एंड जब AB का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा तो मॉलिक्यूल्स इजीली बॉइल नहीं करेंगे, मतलब इस केस में बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का हायर आ जाएगा. रिलेटेड है कि नहीं? समझा पांचों पॉइंट्स? Yes. नाउ एग्जांपल समझते हैं सॉल्यूशंस का, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का. लेट्स कंसिडर दैट आई हैव अ सॉल्यूशन ऑफ खाली किस साइड की बोल रहे हो? हाँ, let's say I have a solution of ethanol and water. इथेनॉल मेरा A कंपोनेंट है, वाटर मेरा B कंपोनेंट है. ठीक है. अब जब मैं A वाला फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पूछूं आपसे, तो इथेनॉल इथेनॉल के बीच में व्हाट टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डू वी हैव? इट्स एन अल्कोहल. अरे अनम्यूट करके बोल. Krishna, when you are on mute, I can't hear. Huh? Can't hear. Ethanol is an alcohol. What type of intermolecular forces does exist between them? बोलो. अरे घोषो. Hydrogen bonding. Water is a B component, यानी BB force of attraction will also be hydrogen bonding because of the OH group. अब जब मैं इथेनॉल और वाटर को मिक्स कर देता हूं तो दोनों में H बॉन्ड है, लेकिन इथेनॉल के अल्काइल ग्रुप में यानी C2H5 में देयर इज हाइड्रोफोबिक अल्काइल ग्रुप. हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर से दूर भागने की कोशिश करेगा. तो जब इथेनॉल और वाटर को मिक्स कर देता हूं उस केस में जो इथेनॉल और वाटर के बीच में H बॉन्ड्स बनेंगे, दे विल बी वीकर एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल इंटरेक्शंस. मतलब यहां पर आई कैन से दैट A interaction is H bonding, BB interaction is also H bonding, but when they are mixed together because of the hydrophobic ethyl group, the AB interaction will be weaker as compared to the individual interactions. मतलब such type of solution will tend to show a positive deviation, and that is why they will be an example of positive deviation. तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखो पॉजिटिव डिविएशन का. वाटर एंड इथेनॉल, ये मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस किया. वैसे ही इथेनॉल एंड एसीटोन, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन एंड बेंजीन, CCl4 and chloroform are all examples of positive deviation. समझा कॉन्सेप्ट?
Yes, sir. और नेगेटिव डिविएशन के एग्जांपल्स ये है वाटर एंड HNO3. नाउ इसको समझने का सिंपल तरीका है. वाटर इज अगेन अ कंपोनेंट A. लेट्स से द H बॉन्डिंग विल बी द A इंटरेक्शन. HNO3 आपका एक एसिड है, ठीक है. नाउ HNO3 इज अ डिसोसिएबल एसिड, मतलब इट विल ब्रेक डाउन इनटू H प्लस एंड NO3 माइनस. अब पानी के साथ द आयंस विल टेंड टू अंडरगो हाइड्रेशन. H प्लस एंड NO3 माइनस विल बी सराउंडेड बाय वाटर. मतलब फाइनली जो AB इंटरेक्शन हो रहा है ना पानी और आयंस के बीच में, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल इंटरेक्शन. मतलब इस केस में आई कैन से A इंटरेक्शन एंड BB इंटरेक्शन के कंपैरिजन में AB इंटरेक्शन काफी ज्यादा है. तो लेस होने की वजह से दे विल शो नेगेटिव डिविएशन. That's why water and nitric acid, water and HCl, aniline and phenol, aniline and acetone, acetone and chloroform, benzene and chloroform are all examples of non-ideal solution showing a negative deviation. तो इस पार्ट से एग्जाम्पल रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, या कंडीशंस के ऊपर जो 5 कंडीशंस मैंने आपको समराइज करके दी है उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. एंड दे आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी सिंपल. ठीक है, ये सारे जितने एग्जांपल्स मैंने दिए हैं एनसीईआरटी बेस्ड है. जस्ट मग इट अप द एग्जांपल्स. पॉजिटिव डिविएशन के 5, नेगेटिव डिविएशन के 6, और आइडियल के लिए सेम फैमिली याद रखो बस. और नेगेटिव में भी सिंपल मैं आपको ट्रिक बताता हूं. वाटर एंड एसिड का मिक्सचर इज ऑलवेज शोइंग नेगेटिव डिविएशन. तो 2 एग्जांपल तो आपको याद हो जाएंगे, वाटर एंड HNO3, वाटर एंड HCl. बाकी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे. ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन उसके अलावा बाकी एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अजियोट्रोप. Azeotropes are the constant boiling mixtures. Azeotrope यानी constant boiling mixtures. तो कंसिडर करो कि इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर है. मुझे बताओ वाटर बॉइल्स एट व्हाट टेम्परेचर? 100 degrees Celsius. इथेनॉल बॉइल्स एट लेस देन 100 या मोर देन 100? Less than 100. एंड डू यू नो द एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट? 75. 78 क्लोजर. ठीक है, मतलब 78 डिग्री. अब जब इथेनॉल और पानी को मिक्स कर दूंगा तो उसका ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? इट्स शोइंग अ पॉजिटिव डिविएशन ना. तो वाटर बॉइल्स एट 100, इथेनॉल बॉइल्स एट 78. जब मिक्स कर दिया तो उनके बीच का इंटरेक्शन कंपैरेटिवली वीक हुआ. तो ओवरऑल सॉल्यूशन विल बॉइल एट अ टेम्परेचर Lesser than व्हाट? 78. सुपर. लेसर देन 100 एज वेल एज 78, मतलब ओवरऑल लेस देन 78 होगा. आता है समझ में? Yes, sir. ठीक है. अब अगर इथेनॉल और वाटर को एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में ले लेते हैं, ठीक है, एंड कौन सा प्रोपोर्शन है वो भी देख लेते हैं. द प्रोपोर्शन ऑफ 95.6% इथेनॉल विद अ बॉइलिंग पॉइंट 78.4 डिग्री सेल्सियस and 4.4% of water with a boiling point 100 degrees Celsius actually forms an azeotropic mixture. मतलब they will boil at a temperature lesser than 78.4 यानी 78.2 डिग्री सेल्सियस. ये क्लियर है टेम्परेचर? और इस प्रोपोर्शन पे आगे आप कितना भी हीट कर लो, the molecules of the ethanol and the molecules of water will evaporate in the same proportion. मतलब जितने इथेनॉल इवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इवेपोरेट होंगे. इसकी वजह से जो प्रोपोर्शन है इथेनॉल और वाटर का वो कभी भी चेंज नहीं होता है. एंड प्रोपोर्शन चेंज नहीं होता है, उसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट 78.2 डिग्री सेल्सियस भी चेंज नहीं होगा. इट एक्वायर्स अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट. Such constant boiling mixtures are called azeotropic mixtures. And those azeotropes which have a boiling point lower than the individual components, they are called minimum boiling azeotrope. तो पॉजिटिव डिविएशन वाले सारे एग्जांपल्स मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप के एग्जांपल्स भी होंगे,
but that should have some fixed proportion. कोई भी proportion में azeotrope नहीं बनेगा. आप बोलोगे 60% इथेनॉल लेते हैं और 40% पानी लेते हैं, azeotrope नहीं बनेगा. समझा? सेम वे में अगर मैं नाइट्रिक एसिड एंड वाटर का proportion लूं with 68% nitric acid and 32% water with their boiling points 86 and 100, now the mixture will boil greater than 100 degrees Celsius. The boiling point of such mixture is 120.5, and such solutions are examples of maximum boiling azeotrope. याद रहेगा तो हमने Ostwald's process में ये concept पढ़ा है. कौन सा Ostwald? नाइट्रिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम NO2, फ्रॉम अमोनिया, है ना. लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ नाइट्रिक एसिड फ्रॉम अमोनिया कॉल्ड एज ऑस्ट्रेल्स प्रोसेस. याद है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अमोनिया पहले एयर ऑक्सीडाइज होता है टू गिव नाइट्रिक ऑक्साइड, NO फर्दर ऑक्सीडाइज होता है इनटू NO2, फिर NO2 को पानी में डालते हैं, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होकर HNO3 बनता है. वो जो HNO3 बनता है that is having a concentration of 68%, और उसको फिर कितना भी बॉईल करेंगे वो 68% से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं हो सकता था. तभी मैंने अजियोट्रोप का फंडा बताया था. Yes. हाँ, तो वही अजियोट्रोप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिलेट किया है. So now the azeotropes which have a boiling point greater than the individual components are maximum boiling azeotropes, and they are the examples of the solution showing a negative deviation from Raoult's law. तो अब देखो सीक्वेंस बहुत सिंपल है. नेगेटिव मतलब लेस 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 लेस, पहले 4 पॉइंट तो क्लियर. और पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने क्या बोला था? विथ रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर होता है. तो अगर वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट Higher. 5वां पॉइंट भी क्लियर है, कोरिलेटेड है, कुछ रटना नहीं है, एवरीथिंग इज कोरिलेटेड. और हायर मतलब इसी को हम मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप भी बोल सकते हैं. खत्म. क्लियर है कि नहीं? बोलो. Yes, sir. So this completes the first colligative property, that is relative lowering of vapor pressure. अगर मैं summarize करूं तो today we discussed about vapor pressure. Then solvent में if we add a non-volatile solute, the vapor pressure is lowered. If that is mathematically represented with respect to P1 naught, it's called relative lowering of vapor pressure. Then I introduced Raoult's law to prove that delta P by P1 naught is equal to X2, to prove that it's a colligative property. ठीक है. फिर उसी को लेकर डाल्टन्स लॉ भी मैंने रिलेट किया, जहां पर I differentiated between the mole fraction X and mole fraction Y. Mole fraction in a liquid phase is X and the component in the vapor phase is called Y. The mole fraction in the vapor phase is called Y. X and Y का फर्क क्लियर. फिर हमने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बात किया. आइडियल आर दोज व्हिच ओबेज राउल्ट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन. नॉन आइडियल मतलब जो राउल्ट्स को ओबे नहीं करता है. ठीक है. आइडियल मतलब एग्जांपल्स आर द कंपाउंड्स बिलोंगिंग टू द आइडियल में एग्जांपल्स कैसे याद रखना है? Same family. बस. आइडियल मतलब सेम फैमिली, और नॉन आइडियल मतलब अलग अलग फैमिलीज के दो अलग कंपाउंड्स अगर हम मिक्स करते हैं तो उनका इंडिविजुअल इंटरेक्शन और उसका मिक्स होने के बाद वाला इंटरेक्शन जब कंपेयर करते हैं तो दो टाइप के डेविएशन मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. उसमें भी पॉइंटर्स और उसको रिलेट कैसे और याद कैसे रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया. अल्टीमेटली एग्जांपल्स आर समथिंग व्हिच यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर. मैंने वाटर एंड इथेनॉल बताया क्यों वो पॉजिटिव डिविएशन का एग्जांपल है. HNO3 एंड वाटर भी बताया क्यों वो नेगेटिव डिविएशन का एग्जांपल है. बाकी एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं और मैंने एग्जांपल लिखे भी ऐसे है ताकि आप याद रख सको. देखो, लुक एट दिस. वाटर एंड इथेनॉल, इथेनॉल एंड एसीटोन, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन एंड बेंजीन, फिर CCl4 एंड क्लोरोफॉर्म, है ना. water and ethanol, ethanol and acetone, acetone and carbon disulfide, acetone and benzene, CCl4 and CHCl. हो गए 5 एग्जांपल. वायर के टिया ये
दूसरी जगह मिलेगा नहीं। फिर नेगेटिव डिविएशन में वाटर एंड HNO3, वाटर एंड HCl, ये 2 एग्जांपल तो मैंने आपको समझा के बोला याद रखना है, इजी टू रिमेंबर। फिर एनिलीन एंड फिनॉल, एनिलीन एंड एसीटोन, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म। एनिलीन एंड फिनॉल, एनिलीन एंड एसीटोन, वापस एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ऊपर नीचे कंफ्यूज नहीं हो जाना। CCl फ्लोर एंड क्लोरोफॉर्म पॉजिटिव डिविएशन होता है, बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डिविएशन होता है, इसमें ध्यान रखना। एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड पॉजिटिव डिविएशन है, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डिविएशन है। इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं, दैट इज व्हाई ये सारे एग्जांपल्स मग अप कर लो। 5 और 6 11 एग्जांपल ही है, 110 नहीं है। सो यू कैन मग अप दिस टू गेट 4 मार्क्स। 4 मार्क्स चाहिए तो 11 एग्जांपल मग कर सकते हो, आपको इश्यू नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, चलो, so that completes the first colligative property. In the next session I will discuss second, third and fourth, which are all correlated to the first one only. एक बार आपको first property समझ गया, second, third and fourth बहुत easy है। ठीक है।